ठीक है. So the new OSP of topic will be root summarization. Summarization का concept तुम्हें पता है, right? So in OSPF summarization can be done on two devices, on ABR and on ASBR. बीच में कहीं पे कर नहीं सकते. ABR पे कर सकते हो, ASBR पे कर सकते हो. So they you'll be having two different commands to configure summarization on ABR and ASBR. अगर ABR पे ABR कौन से राउट इंजेक्ट करता है? ABR कौन से राउट इंजेक्ट करता है? एक्सटर्नल इंटर एरियाज में. हाँ, मतलब LSA टाइप 3 and ASBR injects external other network. हाँ, मतलब LSA type 5. Right? So when you are doing summarization on ABR, what you will be doing? Summarizing type 3 routes. When you are doing summarization on ASBR, that means you are summarizing type 5 routes. ठीक है, मतलब अगर दूसरे एरिया के 100 नेटवर्क्स अंदर आ रहे हैं तो उसको समराइज करके आपका ABR अंदर एक समरी राउट इंजेक्ट करेगा. So that will be only possible if you do summarization on ABR. If you're doing summarization on ASBR, in that case, whatever ASBR is going to inject, that means जो भी external routing protocol से जो भी route वो अंदर inject करेगा, वो कैसे inject करना है, you will have to inform. If you inform him that don't inject all subnetworks, but inject a summary route, then you will have to configure summarization on ASBR. ठीक है? So benefits of summarization, it reduces size of routing table and less LSAs will be flooded. So when you talk of summarization on ABR, that means whatever area border router is, whatever network is growing from one end, will be injecting a summary route into another area. That means area 1 का जो भी network होगा 100, 200, उसको summarize करके area 0 के अंदर जो भी inject करेगा, that will be a summary. ठीक है, ये null interface हम लोग देखेंगे क्या है. तो now कितने सारे नेटवर्क्स है ABR पे जो let's say those are from area 1 whatever. कितने नेटवर्क्स है 116.8 डॉट से लेके 116.19 डॉट. So if you don't do summarization on ABR, all respective subnetworks will be injected into your area 0. So if you summarization करने का main reason क्या है? To reduce the size of the routing table, right? So instead of injecting or advertising individual subnetworks, why not advertise only few subnetworks? लेकिन उसके अंदर वो सब कुछ आना चाहिए, right? So summarization करने के लिए क्या देखोगे तुम लोग? अगर तुम्हें समराइज करना है तो कैसे करोगे? First type of first subnetwork and last type of last subnetwork. You will get a range. वो range किस ब्लॉक में बैठेगा वो ब्लॉक फाइंड आउट करो और वो ब्लॉक एडवर्टाइज करो. ठीक है. So now here starting from 116.8.0 to 116.19.0. तो 8.0 मतलब से 19.0 कितनी बार हो रहा है वो? 11 बार, राइट? तो 11 12 जो भी है, तो इसमें ये किस ब्लॉक में बैठेगा? 16 के ब्लॉक में. 8 में नहीं बैठेगा, 16 के ब्लॉक में बैठेगा. तो 16 के ब्लॉक में लेटे अगर उसको रखना है तो विच स्लैश यू आर गोइंग टू गो विथ? अगर ये पूरा मुझे एक ही सब नेटवर्क में एडवर्टाइज करना स्लैश 20. देखो इंक्रीमेंटेशन थर्ड फोर्थ में नहीं है, थर्ड में है. 116.8 डॉट है ना, तो 8 डॉट्स हम लोग थर्ड ऑक्टेट इंक्रीमेंट हो रहा है. सो स्लैश 20 विल गिव यू अ ब्लॉक साइज ऑफ 16.0. तो क्या एडवर्टाइज करोगे तुम लोग? बोलो क्या एडवर्टाइज करोगे? When you are going with slash 20, multiple subnetworks will be there. वो पहला सबनेटवर्क कौन सा होगा? अगर तुम लोग यही रेंज ले रहे हो 116 यही अगर रेंज ले रहे हो तो पहला सबनेटवर्क क्या होगा? पूरा बताओ.
16.0.0 ठीक है, दूसरा 172.16.0.15 नहीं 15.0 15.255, हाँ 255 दूसरा सबमिट होगा 16.0, फिर तीसरा होगा और उसके आगे 16 मतलब 32.0. So if you advertise 172.16.0.0, if you advertise 172.16.0.0, उसके अंदर कहां तक आएगा पूरा सबमिट हो, एंड क्या होगा उसका 172.16.0.0. ये तुम लोग एडवर्टाइज कर रहे हो ना, तुमने /20 का लिया, सो /20 में मल्टीपल सब नेटवर्क्स है, तुमने लिया पहला सब नेटवर्क 172.16.0.0, तो वो सब नेटवर्क का लास्ट आईपी क्या होगा 172.16.15.255. तो इसके अंदर उसमें से कौन से आए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक आया, ठीक है, 16, 17 नहीं आया, तो बाकी के एडवर्टाइज नहीं होंगे इसमें, ठीक है. लेकिन इसका और एक ड्रॉबैक क्या हुआ कि 8 डॉट से स्टार्ट है, लेकिन 0.0 से लेके 7.255 भी उसके अंदर आया, समझ में आ रहा है. तो मैं अगर 1.0 2.0 किसी तीसरे चौथे लोकेशन पे है तो ये बोलेगा वो भी मेरे अंदर ही है, सो विच इज फॉल्स राउटिंग ना. तो तुम्हें ये देखना है कि 8 ऐसा कुछ प्रिसीजन करो कि 8 से 19 तक की एडवर्टाइज हो, तो वो प्रिसाइज समराइजेशन होगा, नहीं तो फिर तुम्हारा ऑटो समराइजेशन तो है ही ना. तुमने मैनुअल किया ऑटो समराइजेशन अगर होता, मान लो ऑटो समराइजेशन ऑन है, तो ये समराइजेशन किस फॉर्म में जाता, बात बताओ. स्टार्टिंग फ्रॉम 172.16.8.0 वो सभी नेटवर्क 8.1 से लेके नहीं उसके पूरे नेटवर्क मतलब शो करता राउटिंग टेबल पूरे मतलब ऑटो समरी ऑन है. देखो अगर तुम लोग ऑटो समराइजेशन नहीं करते, मैनुअल समराइजेशन नहीं करते तो इंडिविजुअल जाएगा. मैनुअल समराइजेशन तुमने किया नहीं, ऑटो समराइजेशन तुमने ऑन रखा है, तो क्या जाएगा, ऑटो समराइजेशन तुमने ऑन रखा है, तो ये सभी नेटवर्क इंडिविजुअली जाएंगे या एक समरी राउट जाएगा. समरी रूट जाएगा. कौन सा समरी रूट जाएगा, सांग बरं, सांग सांग. कौन सा रूट जाएगा, मैनुअल तुमने किया नहीं, ऑटो तुमने ऑन रखा है, ऑटो ऑफ करते मैनुअल करते नहीं तो क्या होता, मेजर नेट ऑटो तुमने किया नहीं, मैनुअल तुमने किया नहीं, तो क्या होगा पूरे नेटवर्क पूरे इंडिविजुअल जाएगा. अब मैनुअल तुम्हें आता नहीं, ऑटो तुमने किया, तो क्या होगा 8.0/20 उसमें आएंगे. मैनुअल तुम्हें आता नहीं, ऑटो तुमने किया, तो क्या होगा. ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब राउटिंग टेबल ऑटो समराइजेशन मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसमें से उसका मेजर नेटवर्क ये करेगा अरे बाकी के बोलो ना, जब एक ही बोलता है ना तो बाकी के ऐसे क्या देखते फिरते हो इधर उधर. हाँ, ऑटो समराइजेशन मतलब क्या, खुद रेंज फाइंड आउट करेंगे, कौन सा मेजर नेटवर्क का रेंज है वो रेंज ये करेगा एडवर्टाइज. खुद क्या करेगा, रेंज ये एडवर्टाइज सभी सब नेटवर्क्स, ये सभी सब नेटवर्क्स इस रेंज में किस मेजर नेटवर्क इस मेजर नेटवर्क को बिलोंग करते हैं, वो मेजर नेटवर्क आइडेंटिफाई करेगा और वो मेजर नेटवर्क एडवर्टाइज करेगा. तो ये सभी सब नेटवर्क किस मेजर नेटवर्क को बिलोंग करते हैं, 172.16.0.0
24 20 24 हाँ बस एक्सिस्टिंग का साइड ये सभी सब नेटवर्क किस मेजर नेटवर्क को बिलोंग करते हैं? हाँ 116.0.0/16 स्टैंडर्ड सबनेट मास्क पता नहीं क्या रही /8/16/24 क्लास बी का नेटवर्क है 172 क्लास बी है 172 तो बी में स्टैंडर्ड सबनेट मास्क क्या है /16 तो वो सभी नेटवर्क लेगा 116.0.0/16 एडवर्टाइज करेगा तो उसके अंदर तो 116.1 से लेके 116.255 सब तक आता है तो पूरा उसने एडवर्टाइज किया जिसमें से सिर्फ एक्चुअली 8 से 19 ही है उसके अंदर तो ऑटो समराइजेशन करोगे तो इट इज नॉट प्रिसाइज फॉल्स राउटिंग होगा तो तुमने मैन्युअल किया लेकिन मैन्युअल भी तुमने ऐसा किया 116.0.0/20 लिया तो 0.0/20 मतलब 16 का ब्लॉक तो 15.25 जाएगा तो 15 डॉक तो आ रहा है लेकिन 8 के पहले भी तो आ रहे हैं उसके अंदर तो मैन्युअल किया तुमने लेकिन वो इतना प्रिसाइज नहीं हुआ प्रिसाइज ऐसा होना चाहिए कि जितने उतने ही बैठने चाहिए कोई एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए उसके अंदर तो फिर बताओ 13% चालू है ऐसा कुछ करो कि 8 से स्टार्ट हो और 19 तक बैठे बाकी का कुछ भी आगे अंदर एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए गलती से उसमें अगर 7.0 आता है या गलती से उसमें अगर 20.0 आता है तो वो नेटवर्क भी वो राउटर एडवर्टाइज करेगा कि ये मेरा ही करके और वो अगर किसी दूसरे के पास रहेगा तो फॉल्स राउटिंग होगा तो समावेशन मतलब ऐसा नहीं कि ऑटो रहोगे तो पूरा खत्म ना तो मैनुअल तो तुम लोग कर रहे हो ठीक है लेकिन उसमें भी तुमने 116.0.0/20 लिया तो उसमें 0.0 से स्टार्ट हुआ वो और 15 डॉट उसमें 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 ये तुम्हारा है कि इसके अंदर किधर लेकिन तुम्हारा राउटर ये बोल रहा है ये भी मेरा ही है जो कि गलत है तो मैनुअल समराइजेशन इतना प्रिसाइज होना चाहिए कि जितने हैं उतने उस ब्लॉक में बैठे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए फॉल्स राउटिंग ना हो इसलिए 8.0/17 वो आएगा 15.0 तक रुक 8.0/17 17 मतलब ब्लॉक साइज क्या 8 8 into 8 into 2 ठीक है मतलब तीसरा ऑक्टेट तीसरा ऑक्टेट ये हो सुन 8 into 256 कैसा है 17 में +17 नहीं आता 21 हाँ /21 अगर तुम /21 लेते हो तो ब्लॉक साइज आएगा 8 into 256 तो 116.0.0 एक सबनेटवर्क हुआ 116.8.0 दूसरा सबनेटवर्क हुआ तुम लोग दूसरा सबनेटवर्क ले लो 8.0 वो जाएगा 15 तक ठीक है तो फिर भी उसमें 16 17 18 19 हुआ उसका 4 तो जैसे पहले डिस्कस किया था समावेशन करना इसका मतलब सभी एक के अंदर बैठने की कोशिश करो लेकिन नहीं बैठ रहा है तो ये नहीं बोल सकते कि तुम लोग 2 समावेश आउट मत करो कर रहे तुम लोग 2 क्रिएट करो तो 8.0 ले लो तो 15 डॉट तक जाएगा अब 16 17 18 19 ये 4 का ब्लॉक बचा हुआ है तो ये 4 के लिए /22 ले लो अगर /22 ले रहे हो तो /22 मतलब 4 into 256 तो तीसरा ऑक्टेट 116.0.0 4.0 8.0 16.0 आ रहा है तो 16.0/22 करो तो वो जाएगा 17 18 19 तो वो तुम्हारा प्रिसाइज हुआ क्लियर है तो एबीआर पे तुम लोग ये समझ आउट एडवर्टाइज करोगे जो उन्होंने राइट में दिया हुआ है दोस्त 116.8.0/21 और 116.16.0/22 जब ये एडवर्टाइज करोगे तो ये कितना है ये 8 से लेके 19 11 है ना 11 12 ये 11 12 के वजह से 2 एडवर्टाइज होगा लेकिन उस 2 में ये सभी आ रहा है एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है ठीक है ये उसका कमाल एबीआर पे किसको समराइज करना है एरिया 1 के राउट्स अगर वो एरिया 0 में इंजेक्ट कर रहा है तो एरिया 1 रेंज और वो समराइज राउट डिफाइन करो अगर एबीआर सिर्फ एरिया 1 का राउट एरिया 0 में इंजेक्ट कर रहा है कि एरिया 0 का भी एरिया 1 में कर रहा है दोनों तरफा कर रहा है ना क्योंकि वो एरिया बॉर्डर राउटर है 0 के नेटवर्क 1 को कैसे पता चलेंगे जब 0 का लेके
ABR 1 में इंजेक्ट करेगा और 1 का लेके ABR एरिया 0 में इंजेक्ट करेगा। तो तुम्हें अगर एरिया 0 का भी समराइजेशन करना है तो उसी राउटर पे चलेगा क्योंकि ABR वही है। तो एरिया 0 रेंज मतलब एरिया 0 में मान लो तुम्हारे पास नेटवर्क है मल्टीपल 192.168.1.0 से लेके मान लो लेट से 15.0, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया 0 रेंज 192.168.0.0 और स्लैश कौन सा यूज करोगे 20। मतलब अगर एरिया 0 में तुम्हारे पास नेटवर्क है 192.168.1.0 से लेके 192.168.15.0, तो 16 का ब्लॉक तुम्हें यहाँ पे अगर समराइजेशन ABR पे नहीं करते हो तो 0 का 1 पे जो जा रहा है वो इंडिविजुअल जा रहा है। तुम लोग एटो कर रहे हो तो पूरा बताएगा, तो फिर मैनुअल करोगे तो प्रिसाइज करो तो 192.168.0.0 स्लैश 20 ले लो ताकि वो 0.0 से लेके 15.255 ये जाएगा यहाँ तक। मतलब जिस एरिया को समराइज करना है वो एरिया नंबर डिफाइन करना। यहाँ पे क्या किया है एरिया 1 रेंज, मतलब हम लोग ABR को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी एरिया 1 के अंदर नेटवर्क्स है ऑब्वियसली इस रेंज के अंदर होंगे। तो ये तुम्हारा समरी राउट तुमने क्रिएट किया ऑलरेडी, फर्स्ट और लास्ट से आइडेंटिफाई किया। तो एरिया 1 का जो भी होगा यू आर सेइंग दैट दिस whatever networks are part of area 1 those should be summarized by using this route and inject this route into your area 0। अगर एरिया 0 का कुछ करना है समराइज करके तो एरिया 0 रेंज और वो नेटवर्क एड्रेस डालो तो ABR को इंजेक्ट करेगा 1 के अंदर। समझ में आ रहा है? So the commands will be different. ABR का समराइजेशन कमांड अलग है, ASBR का समराइजेशन कमांड अलग है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि 0 का 1 में करना है 1 का 0 में करना है तो ABR पे ही चलेगा लेकिन 2 कमांड चलेगा। यहाँ पे कौन सा नेटवर्क है 116.96.0 से लेके 127.0, तो 96.0 से लेके 127.0 मतलब ये तीसरा ऑक्टेट कितनी बार इंक्रीमेंट हुआ 106, 116, 126, 32 बार इंक्रीमेंट हुआ। तो तीसरा ऑक्टेट में 32 का इंक्रीमेंट तुम्हें फाइंड आउट करना है। तीसरा ऑक्टेट 32 का इंक्रीमेंट मतलब स्लैश कौन सा होगा 19, तो स्लैश 19 मतलब 116.0.0, 116.32.0, 116.64.0, 116.96.0, 96.0 में 127.255 सभी बैठेगा। तो यहाँ पे तुम लोग 0 का 1 में इंजेक्ट कर रहे हो तो एरिया 0 ये नीचे वाला आएगा एरिया 0 रेंज 96.0 और ये 19 का सबनेट मास्क है। और दूसरा एरिया 1 का इस तरफ करना है, एरिया 1 में क्या है 64.0 से लेके 95 मतलब 64 से 95 वो भी 32 का ब्लॉक, लेकिन वो 64 मतलब वो सबनेट मास्क वो भी सेम ही आएगा लेकिन वो 64.0 एड्रेस करोगे तुम लोग स्लैश 19, तो वो 1 का 0 में जाएगा। समराइजेशन कंसेप्ट है उसके लिए कमांड है। अब 10 बार मैं समराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत बार हो चुका है समराइजेशन, ठीक है। कमांड क्या है तो ये कमांड if you want to do the same thing on ASBR then type 5 summary routes will be generated, ठीक है। तो उसके लिए कमांड थोड़ा सा अलग होगा। ये कमांड यहाँ पे एरिया डिफाइन नहीं किया, तुम लोग अगर ABR पे करो तो एरिया 1 रेंज या एरिया 0 रेंज करो, यहाँ पे एरिया नहीं डिफाइन किया क्यों, एक्सटर्नल कोई OSPF नहीं है, या OSPF भी हो सकता कुछ भी हो सकता, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं ना, बाहर से जो भी आ रहा है दैट कैन बी एवरीथिंग, वो 0 है कुछ भी है फर्क नहीं पड़ता। सो दैट्स व्हाई वहां पे एरिया कंसेप्ट में सिंपल समरी एड्रेस और आगे जो भी एक्सटर्नल आपके पास जो भी राउट्स है फाइंड आउट करो क्या समरी राउट होगा, आगे उसका सबनेट मास्क नेटवर्क एड्रेस का सबनेट मास्क डाल दो, ठीक है। ये उसका कमांड, यहाँ पे क्या लिया उन्होंने 176.32.0 से लेके 63 मतलब 32 का ब्लॉक, अगेन ये स्लैश 19, स्लैश 19 तुम लोग एडवर्टाइज करो, ठीक है। नाउ डिफॉल्ट राउटिंग तुम्हें पता है, डिफॉल्ट राउटिंग नहीं पता, नहीं पता,
हाँ, डिफॉल्ट राउटिंग क्या होता है? डिफॉल्ट राउटिंग क्यों करते हैं? हम्म, हाँ लेकिन क्यों करते हैं? हम्म, किस टाइप के राउटिंग होते हैं? नहीं, राउटिंग के टाइप्स क्या है? स्टैटिक, डायनामिक और डिफॉल्ट। स्टैटिक में क्या करते हो? मैन्युअली कौन से रूट देते हो? रिमोट नेट रिमोट। डायनामिक क्या क्या करते हो? बाय शेयरिंग डायनामिक वो खुद लर्न करते हो। डिफॉल्ट क्या होता है? ये ओएसपीएफ के रिलेटेड नहीं पूछ रहा हूँ, ये हो चुका है। जब सीसीएनए के टाइम में छोटे छोटे आए थे ना तुम लोग, तो पहले 4-5 6-7 लेक्चर में ये हो चुका है। तुम लोग क्या कमांड डालते हो डिफॉल्ट राउट? आईपी रूट स्पेस 0.0.0.0, सबनेट मास्क 0.0.0.0। स्टेटमेंट स्टैटिक रूट जैसे ही होता है, लेकिन स्टैटिक रूट में तुम लोग रिमोट नेटवर्क स्पेसिफाई करते हो, उसका सबनेट मास्क स्पेसिफाई करते हो, और कहाँ से रीचेबल है नेबर का आईपी स्पेसिफाई करते हो। यहाँ पे आपका जो भी होगा रिमोट नेटवर्क एंड देयर रिस्पेक्टिव सबनेट मास्क वो 0.0 होगा। ये तुम्हारा राउटर है, कस्टमर एज राउटर। ये तुम्हारा लैन है, तुम्हें करना है इंटरनेट एक्सेस। तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, कुछ भी टाइप करते हो, वो पेज ओपन होता है। कैसे? हम्म, उस पोर्ट को सर्च करतो ते रिपोर्टला नाव एक्सेस करतोय आणि ते पोर्ट पुढे परमिशन नहीं, परमिशन वगैरह छोड़ो। त्याचा आयपी ऍक्सेस करते, कारण की त्याचा जो आयपी असतो हा डिफॉल्ट असतो रूट 0.0. कारण आपल्याला आपण जितक्यांदा क्लिक करतो वेगळे वेगळे पेजेस ओपन असतात, त्याला बाय डिफॉल्ट वेगळे वेगळे आयपीज असतात, नेटवर्क। नेटवर्क. ये इंटरनेट में कितने नेटवर्क्स है? काउंट नहीं कर सकते। लेट्स से 1000 मिनिमम पकड़ लेते हैं, ठीक है। एक तो दो ऑप्शन है, एक तो इसके राउटिंग टेबल में होना चाहिए सभी 1000, तभी ट्रैफिक इसके पास आएगा। ये टेबल के अंदर देखेगा, पता है राउट करेगा, नहीं पता है छोड़ देगा। इसके राउंड टेबल कैसे फिल होगा? एक तो डायनामिक राउटिंग डॉट प्रोटोकॉल रन करो, ताकि ये दोनों के बीच में एक्सचेंज हो। वॉट एवर ही नोज ही इज गोइंग टू शेयर विथ हिम एवरीथिंग। इसके टेबल में 1000 एंट्रीज आ जाएंगी। या तुम लोग मैन्युअली इस पे 1000 रूट्स कॉन्फ़िगर करो, जो 1000 डेस्टिनेशन है उसके लिए, उसके अंदर स्टैटिकली 1000 एंट्रीज आ जाएंगी। अगर ये दोनों के बीच में कोई डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा, जो कि नहीं चलता आईएसपी और तुम्हारे बीच में, ये आईएसपी का राउटर, इसके और तुम्हारे बीच में कोई डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलेगा नहीं, सो ही इज नॉट गोइंग टू एक्सचेंज एनीथिंग टू यू। तो इसके टेबल में एंट्री कहां से आएगा? जब ही नीचे से पैकेट आएगा, ही सेज व्हाट इज द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द पैकेट 9.9, लेट मी लुक इनटू माय राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल के पास रहेगा वो एंट्री।
तो फिर तुम्हें कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, इंटरनेट एक्सेस कैसे हो रहा है? फिर स्टैटिक तुमने किया नहीं तो तो इस पे क्या कॉन्फ़िगर करना होगा? स्टैटिक करोगे तो ये 1000 नेटवर्क्स में बताना होगा आईपी रूट 0.0.0.0 मतलब ये 0 के बजाय वो स्पेसिफिक होगा 192.168 जो भी है 1.0 2.0 3.0 4.0 ऐसा करते करते जो भी 1000 है। डिफॉल्ट पे क्या करोगे 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस रीचेबल वाया ये पोर्ट का आईपी लेट्स से 192.168.46.5 इसका मतलब क्या है? दिस स्पेस ये स्पेस किस लिए है? हाँ यहाँ पे क्या लिखते हो तुम लोग और यहाँ पे क्या लिखते हो? ये क्या है? हाँ क्या है ये? हाँ आईपी डेस्टिनेशन आईपी अरे यहाँ पे क्या लिखते हो गधे हो? हाँ बोल नेटवर्क कोणाचा स्वतःचा हाँ हाँ रिमोट नेटवर्क ये क्या सबनेट किसका रिमोट नेटवर्क ये क्या है गेट तो ये रिमोट नेटवर्क के जगह पे स्पेसिफिक रिमोट नेटवर्क डालने के बजाय आई हैव एंटर्ड 0.0.0.0 तो दिस 0 इंडिकेट्स एनी नवीन नहीं ये लेना दे दिस 0 इंडिकेट्स एनी दैट मींस व्हाट doesn't matter whatever the remote network is doesn't matter whatever the subnet mask of the remote network is send a packet to 46.5 तो इसके राउटिंग टेबल में ये राउट जाके बैठेगा S star which says whatever remote network कोई भी पैकेट होने दो उसका डेस्टिनेशन कोई भी हो राउटर रिसीव्स अ पैकेट whose destination is 9.9 router will look into his routing table says I don't know where is 9.0 but I have a default route which says doesn't matter whatever the remote network is doesn't matter whatever the subnet mask of the remote network is पैकेट उठा नेबर को सेंड कर नेबर कौन है आईएसपी उसको पता होगा तो यहाँ पे हमेशा डिफॉल्ट राउटिंग ही चलता है इस पे तुम लोग डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करोगे लेट्स से आरआईपी या ईआईजीआरपी या ओएसपीएफ तो इसको राउट पता चलेगा या नहीं रिमोट नेटवर्क्स पता चलेंगे या नहीं अगर तुम्हारे राउटर पे तुम लोग डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हो तो तुम्हारे राउटर को रिमोट नेटवर्क पता चलेंगे या नहीं नहीं चलेंगे क्योंकि इस पे भी तो होना चाहिए प्रोटोकॉल तुम लोग आईएसपी को फोर्स नहीं कर सकते हम लोग ईआईजीआरपी यूज कर रहे हैं तो यूआईजीआरपी यूज कर करके तो तुम लोग भले अपने राउटर पे डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करो ये अपने राउटिंग थोड़ी तुम्हारे हिसाब से प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेगा तो इनके बीच में कभी भी डायनामिकली कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या वे बचता है एक तो स्टैटिकली राउटर को इन्फॉर्म करो 10 लाख नेटवर्क्स 1 बाय 1 जो पॉसिबल है नहीं या फिर राउटर पे एक डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करो पता नहीं नेबर को सेंड कर सो योर R1 and R2 आर योर एज राउटर्स ठीक है तो ये तुम्हारा राउटर जो है दैट इज योर बाउंड्री राउटर ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर इसने अंदर क्या इंजेक्ट करना चाहिए एक तो समरी रूट लेकिन पता नहीं क्या कितने नेटवर्क से वो पता ही नहीं है कितने सारे तो बेस्ट ऑप्शन है इंजेक्ट डिफॉल्ट रूट समर रूट कब इंजेक्ट करते हो जो तुम्हें पता है कि एक्सटर्नली कितने नेटवर्क्स है उसको समरी मान लो एक्सटर्नल पूरा इंटरनेट है तो क्या क्लब करोगे फिर अगर एक्सटर्नल से मान लो अगर
कोई स्पेसिफिक 200-300 सब नेटवर्क्स तुम्हें दिख रहे हैं कि ये 200-300 सब नेटवर्क्स बाहर से आ रहे हैं, तो चलो तुम लोग उसका फर्स्ट और लास्ट का लास्ट फाइंड आउट करके एक पूल बना सकते हो और फिर एक समय एड्रेस डिफाइन करके उसको अंदर ले सकते हो। अभी बाहर से जो भी है वो पूरा इंटरनेट है, क्या समराइज करोगे उसको? तो एक तो R1 पे डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करो बाहर जाने के लिए। R1 पे मान लो ये लोकल नेटवर्क है, इसको अगर यहाँ पे इंटरनेट पे जाना है तो पैकेट अगर जब इसके पास आता है R1 के पास, R1 अपना टेबल देखेगा अगर ASBR है वो, ठीक है। तो ये अपना टेबल देखने के बाद इसको पता होगा वो डेस्टिनेशन किधर है। ये अगर तुम्हारा ASBR है तो इसको पता होगा डेस्टिनेशन किधर है। ये ASBR है ना तुम्हारा, मतलब ये बाउंड्री पे बैठा है, तो इसको पता होगा डेस्टिनेशन किधर है। ये बाउंड्री पे बैठा है, किसके बीच में बैठा है ये? किन दोनों के बीच में बैठा है? एक साइड पे तुम हो, एक साइड पे तुम हो, एक साइड पे इंटरनेट। तो इसको पता होगा ना सब। एक ये देखो, ये अगर टाटा का और रिलायंस का बीच का राउटर है तो उसको टाटा के साइड का भी पूरा पता होगा, रिलायंस के साइड का भी पूरा पता होगा, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉन्फ़िगर। ऐसा नहीं कि ये टाटा का है और ये रिलायंस। ये बाउंड्री पे अगर बैठा है तो इसका मतलब इसका इस तरफ मान लो इसका EIGRP हो सकता है, इस तरफ उसका OSPF हो सकता है। ऐसा अगर इस पे सिर्फ EIGRP है या फिर इस पे सिर्फ OSPF है तो वो बाउंड्री राउटर कैसे हुआ? वो बाउंड्री राउटर है, इसका मतलब क्या है कि इस तरफ आपका क्लाउड है, OSPF हो सकता है, जो भी हो सकता है, और इसका दूसरा हब जो है वो दूसरे ISP को हो सकता है या दूसरे एंड पे कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब दिस सेंटर राउटर इज कॉन्फ़िगर्ड विद बोथ, सो विल बी नोइंग अबाउट बोथ। तो प्रॉब्लम R1 का नहीं है टू कम्युनिकेट विद आउटसाइड नेटवर्क, प्रॉब्लम R1 का नहीं है टू कम्युनिकेट विद आउटसाइड नेटवर्क। लेट्स सी, ये आपका ESBR है, उसके इस तरफ जो भी है, ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क होगा, इसका आधा पार्ट इधर है तो इसको सब कुछ पता होगा ना इस तरफ का। और ये अंदर ये आधा तुम्हारा राउटर है और ये अंदर पूरे तुम्हारे पूरा ये तुम्हारा ये पूरा इंटरनल नेटवर्क तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा OSP है। नाउ यहाँ पे भी यूजर्स हो सकते हैं, यहाँ पे भी यूजर्स हो सकते हैं, यहाँ पे भी यूजर्स हो सकते हैं, इस पे भी यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है। नाउ ही नोज, मान लो यहाँ पे नेटवर्क है 172.16.0.0 से लेके 172.16.100.0 तक 100 नेटवर्क्स है यहाँ, ठीक है। अब मान लो ये EIGRP, मान लो ये EIGRP और ये तुम्हारा OSPF साइड, तो इसके बीच में EIGRP नेबरशिप भी होगा और इसका ये OSPF नेबरशिप भी होगा। इस तरफ आपके 100 नेटवर्क्स है, लेट्स से 192.16.1.0 से लेके 100.0, ठीक है। ये आपके 192 सीरीज के नेटवर्क्स है और ये बाहर के 172 सीरीज के नेटवर्क्स है। अब जो ये बाउंड्री पे बैठा है उस पे दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होगा, तभी तो वो बाउंड्री राउटर, उस पे अगर एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर तो ASBR कैसे बना फिर, ठीक है। तो अगर तुम लोग इसका राउटिंग टेबल देखो, मान लो बाहर से अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, बाहर से अभी तक कुछ भी अंदर नहीं आया, तो इसका राउटिंग टेबल अगर देखोगे तो ये 192 सीरीज के सभी दिखेंगे। इसका देखोगे तो भी 192 सीरीज का सभी दिखेगा, इस पे देखोगे 192 सीरीज का सभी दिखेगा, इस पे देखोगे तो 172 सीरीज का सब दिखेगा, इस पे देखोगे तो 172 का सीरीज का सब दिखेगा। अगर तुम लोग ASBR पे अगर शो IP राउट करोगे तो उसको क्या दिखेगा? उसको दोनों दिखेगा। दैट मीन्स इसको 200 नेटवर्क्स दिखेंगे, 192 168 वाले भी शो और 172 16 वाले के भी शो दिखेंगे, क्योंकि इस पे दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है।
अब ये तुम्हारा ASBR है तो ये टाइप 5 इंजेक्ट करेगा तो ये बाहर का भी आपको अंदर दिखना स्टार्ट हो। ठीक है, ठीक। अभी मान लो जैसे ये राउटर को प्रिसाइजली ये सब कुछ पता है क्योंकि इस पे दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर, तो ये जो यूजर है ये अगर इसको पिंग करता है तो ये यूजर को ये पिंग होगा, ये वाला डेस्टिनेशन पैकेट राउटर के पास जाएगा। नेट से डेस्टिनेशन है 116.20.10 राउटर के पास जाएगा। इसके राउंड टेबल में ये भी तो नेटवर्क है ना, तो इस तरफ सेंड होगा, इसको पिंग होगा। ये बंदा अगर पिंग करने की कोशिश कर तो इसको पिंग होगा। ये पीसी अगर पिंग करने की कोशिश कर रहा है इस रेंज में से तो इसको पिंग होगा। बोल लो टाइम ना होगा। हाँ देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अभी तक कुछ एडवर्टाइज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इसके टेबल में आएगा, ये चेक करेगा क्या डेस्टिनेशन है 116.20.20, ये चेक करेगा आई नो एवरीथिंग अबाउट 192, नहीं पता डिस्कार्ड। ठीक है, सेम इसका केस है, सेम इसका केस है। ठीक है, अगर ये एडवर्टाइज नहीं कर रहा है कुछ तो ये सीन हुआ, लेकिन फिर भी मुझे कम्युनिकेट करना है, मुझे चाहिए कि ये वाले यूजर्स, ये सभी यूजर्स दे शुड कम्युनिकेट विद दीज नेटवर्क्स, दे शुड कम्युनिकेट विद दीज नेटवर्क्स। ये अंदर कुछ भी इंजेक्ट नहीं करता, बट स्टिल आई वांट दीज पीपल टू कम्युनिकेट विद दिस नेटवर्क। क्या कर सकते हो तुम लोग, ये अगर इंजेक्ट कर देता तो इनके टेबल में आता तो प्रॉब्लम नहीं था, बट लेट्स से इफ इज नॉट इंजेक्टिंग एनीथिंग तो इनके टेबल में तो ये नेटवर्क आने वाला है नहीं, लेकिन तुम्हें करना है उनके साथ कम्युनिकेशन, तो तुम्हारे राउटिंग टेबल में वो एंट्री लाना होगा। कैसे लाओगे, मैन्युअली, मतलब इन पे स्टैटिक रूट, सो स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करो, इस पे इन रेंज को जाना है तो इसको सेंड कर, इस पे सो स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करो, इसको जाना है तो इसको सेंड कर, इस पे सो स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करो, इसको जाना है तो यहाँ पे सेंड कर, तब होगा। या फिर इस पे डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करो, जिस जो भी नहीं पता इसको सेंड कर, इसको डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करोगे, जो भी नहीं पता इसको सेंड कर, इसको डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करोगे, जो भी नहीं पता इसको सेंड कर, ऐसा ही करोगे ना। अब पीछे 3 राउटर है सिर्फ, इसलिए ठीक है, चलो ठीक है, हर एक राउटर पे एक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर करने में क्या जा रहा है, लेकिन पीछे अगर 100 राउटर है तो नहीं होगा, लेकिन आपको हर एक राउटर पे लेके वो डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करना होगा, बराबर ना। तो ये मैन्युअल हुआ। तो इसमें क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, मतलब क्या कि ये जो राउटर है R1, ये अंदर एक डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट R1 क्या इंजेक्ट कर सकता था, इंडिविजुअल नेटवर्क्स, समरी राउट, हमें वो कुछ भी नहीं करना, हमें वो कुछ भी नहीं करना, हम सिर्फ चाहते हैं कि हर एक अंदर राउटर के पास हर एक डिफॉल्ट रूट होना चाहिए। वो कहां से आएगा, इधर तुम मैन्युअल कॉन्फ़िगर करो, वैसे ही करना होगा ना, तुम मैन्युअल कॉन्फ़िगर करो हर एक राउटर के ऊपर, या फिर स्टैटिकली उसको बताओ, वो क्या सोल्यूशन नहीं हो, क्योंकि ये तो हमने बाहर के 100 नेटवर्क्स लिए, अगर 10,000 नेटवर्क्स बाहर हो तो हर एक राउटर पे 10,000 थोड़ी स्टैटिक राउट डालोगे, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि डिफॉल्ट रूट डालो। लेकिन फिर 2-3 पीछे आपके डोमेन में राउटर है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारे आपके डोमेन में ये OSPF प्रोटोकॉल है तो इसके अंदर मान लो ये चलो कि ये टाटा और एयरटेल के बीच में बैठा हुआ राउटर है, इस तरफ उसका एयरटेल है। ठीक है, तो एयरटेल के नेटवर्क्स, उसको कोई लिमिट नहीं कितना हो सकता, तो ये जितने भी आपके OSPF के राउटर्स हैं, टाटा के पास भी लेट से 1000 राउटर्स होगा, OSPF के पास भी मिनिमम 1000 राउटर्स होगा, रिलायंस के पास लेट से जो भी है वो, तो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी राउटर्स है 1000 2000 हर पे डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं। तो उससे अच्छा तुम लोग ASBR को बताओ भाई, तू अंदर एक डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट कर,
भाई तू अंदर एक डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट कर, तो वो ऑटोमेटिकली हर एक राउटर पे एक डिफॉल्ट रूट आ जाए। समझ में आ रहा है? तो मैन्युअली करते तो तुम लोग करना ही होता ना वो, क्योंकि एएसबीआर अगर प्रिसाइज नेटवर्क अंदर इंजेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या ऑप्शन है कम्युनिकेशन करने का? एक तो तुम्हारा देखो राउटिंग टेबल में नेटवर्क है तो कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो तुम्हारे राउटर के राउटिंग टेबल में नेटवर्क्स लाओ। रिमोट नेटवर्क अगर 4 है तो वो भी चलो तुम लोग मान लो कर भी लोगे, 4 स्टैटिक रूट डाल दोगे 3 राउटर पे। लेकिन अगर रिमोट नेटवर्क अगर 1000 2000 है तो हम लोग स्टैटिक राउट अगर हर एक राउटर पे करोगे तो तुम्हारे ओएसपीएफ के डोमेन में 1000 राउटर्स, रिमोट नेटवर्क 1000, मतलब हर एक राउटर पे 1000 स्टैटिक रूट्स, ऐसे 1000 राउटर्स पे कॉन्फ़िगर करना होगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? एक तो मतलब डिफॉल्ट रूट, अगर तुम्हें ये ओएसपीएफ का कंसेप्ट नहीं पता, तुम्हें इतना तो पता है डिफॉल्ट राउटिंग कंसेप्ट होता है, तो तुम लोग क्या करोगे, ठीक है यार 1000 राउटर्स पे 1000 नेटवर्क्स कॉन्फ़िगर करने के बजाय हर एक राउटर पे एक एक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर, तो भी बनेगा। लेकिन फिर हर एक रूट पे डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करोगे तो कितने राउटर है तुम्हारे? 1000 राउटर्स। तो 1000 राउटर पे जाके शो आईपी रूट, सॉरी आईपी रूट 0.0.0 नेक्स्ट स्टॉप, आईपी रूट हर दूसरे राउटर पे जाओ, 1000 राउटर पे करना होता। तो बेस्ट ऑप्शन है एएसपीआर को बोलो तू डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट कर। तो जब वो डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली हर एक राउटर जो आपके इंटरनल ओएसपीएफ में हर एक राउटर में ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट रूट आके बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसको कहते हैं डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। ठीक है, कमांड देखेंगे आगे, उसका कमांड है। क्लियर? अभी R1 और R2 तो ASBR, तो दोनों डिफॉल्ट इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब दोनों डिफॉल्ट इंजेक्ट करेंगे तो किसके थ्रू वाला पास बेस्ट होगा? ये तुम्हारे दो ASBR है। ठीक है, आपने बोला प्लीज इंजेक्ट डिफॉल्ट रूट, आपने बोला प्लीज इंजेक्ट डिफॉल्ट रूट, तो अंदर आपका ऐसा होगा, ये आपका क्लाउड है। ठीक है, ये तुम्हारा 8 10 11 12 13 14 15 कल काय चालू असेल तुमचं? हाँ, अब ये डिफॉल्ट रूट ये भी इंजेक्ट कर रहा है, डिफॉल्ट रूट ये भी इंजेक्ट कर रहा है, तो इसके बाद दो डिफॉल्ट रूट आएगा, वन R11 टोल्ड है, वन R14 टोल्ड है, तो इसके पास दो डिफॉल्ट रूट है, 0.0.0.0/0 भाया 11 और 0.0.0.0/0 रीचेबल वाया 14। तो इसके पास एक पैकेट आता है जिसका डेस्टिनेशन यहाँ पे कहीं तो होगा, 172.100 डॉट समथिंग। तो ये राउटर चेक करेगा क्या डेस्टिनेशन है, 100 डॉट समथिंग। तो राउटर क्या करेगा, R10 राउटर क्या करेगा, इसके लैन में से उसके पास एक पैकेट आया जिसका डेस्टिनेशन ये है, क्या करेगा R10 राउटर? बेस्ट पाथ जो भी होगा, कैसे से होगा, क्या बेस्ट पाथ है? मेट्रिक तो डेस्टिनेशन है ना ये, मेट्रिक इसी को तो पिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो पैकेट आया राउटर के R10 के पास, R10 ने चेक किया, पता है क्या वो, पता है उसको, उसको पता है R10 को 100 डॉट नहीं पता, तो क्या पता है R10 को? हम्म, इसके neighbor, R10 को क्या पता है? कनेक्टेड हाँ, और डिफॉल्ट रूट पता है, तो क्या करेगा R10? कौन सा बेस्ट पाथ, कैसे आइडेंटिफाई किया? इसका कॉस्ट
पहले तो ये देखा जाता है डिफॉल्ट ब्राउज़र है कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो वो ब्राउज़र से एक्सेसिबल है ऊपर वाले ASBR ये कैसे करोगे कॉन्फ़िगर? ये कैसे करोगे? ये कैसे करोगे? हाँ, R10 के पास नीचे से पैकेट है, डेस्टिनेशन 100 है। R10 क्या करेगा? क्या करेगा R10 सबसे पहले? सबसे पहले अपने राउंड टेबल में देखिएगा क्या मिलेगा उसको। राउंड टेबल में मिलेगा ये 110 100 नहीं मिलेगा। तो क्या मिला उसको? डिफॉल्ट रूट मिला। कितने मिले? दो मिले। एक बोल रहा है कि नहीं पता 11 को सेंड बोल रहा है कर, एक कह रहा है कि नहीं पता 14 को सेंड। तो क्या करेगा R10? हाँ, दोनों को। तो किसको सेंड करेगा? फिर उसको रूट की कॉस्ट बताओ जो बेस्ट रूट है उसी से। हाँ, तो कैसे आइडेंटिफाई वो कौन बेस्ट है? उसके लिए ASBR ने कॉस्ट काउंट करते करते मेट्रिक भेजना चाहिए उसके साथ। हाँ, मतलब क्या? ये बाय डिफॉल्ट जो इंजेक्ट कर रहा है वो क्या इंजेक्ट कर रहा है? नेटवर्क इंफॉर्मेशन प्लस E2 में हॉप बाय हॉप तुम्हारा मैट्रिक चेंज नहीं होता तो ये लोड बैलेंस करेगा। एक पैकेट ऊपर से एक पैकेट नीचे से। अब तुम चाहते हो कि कोई तो एक बेस्ट पाथ ले, ठीक है? तो क्या करोगे तुम लोग? E1 को। तो जो बेस्ट है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट निकलेगा वो R10 ले लेगा। मान लो ऊपर वाला मैट्रिक कम निकला तो R11 के थ्रू वो सेंड करना स्टार्ट करे, ठीक है? अगर मुझे नीचे वाला पार्ट चाहिए बेस्ट, तो नीचे वाला मुझे, मैं चाहता हूँ कि R10 का पूरा ट्रैफिक बाहर जाएगा, 14 के थ्रू ही जाना चाहिए। उसको कॉस्ट कम करना, हाँ, कॉस्ट कम करना। कम करना कैसे? तो इसको बोलोगे जो भी तू डिफॉल्ट अंडर इंजेक्ट करेगा वो कॉस्ट 100 से कर। इसको बोलोगे जो भी तू डिफॉल्ट अंदर इंजेक्ट करेगा कॉस्ट 10 से कर। तब ये डिफॉल्ट जो अंदर करेगा कॉस्ट 100, तो अगर E1 अप्लाई किया तो वो 100 के आगे ही प्लस प्लस होते जाएगा। और इसको इंजेक्ट करते हुए बोला है कॉस्ट 10 से कर, तो अगर तुमने E1 किया तो वो भी इंक्रीमेंट होते होते जाएगा। या फिर वो तुमने E2 ही रखा है तो क्या होगा? ये 100 इंजेक्ट करेगा, यहाँ तक 100 ही रहेगा। जिसने 10 इंजेक्ट किया यहाँ तक 10 ही रहेगा, तो ये लोएस्ट हो। तो इसका मतलब वॉट एवर यू आर इंजेक्टिंग स्पेसिफाई द कॉस्ट एज वेल व्हाइल इंजेक्टिंग, ठीक है? तो ये तुम्हारा है। तुम लोग जो एडवर्टाइज कर रहे हो उसके साथ कॉस्ट भी डिफाइन करो, ठीक है? क्लियर है? अब डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, मतलब प्लीज सेंड अ डिफॉल्ट रूट इनसाइड, और डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज। दो तरीके, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट और डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज। दोनों में क्या डिफरेंस है सुनिए लें। आए चालू लास्ट मध्ये ठीक है। क्या देखने वाले थे हम लोग? ओरिजिनेट और ऑलवेज ना। ठीक, ये तुम्हारा राउटर है, ये क्लाउड, ठीक है? ये ESB है, ठीक है? अब अगर तुम लोग कह रहे हो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, तो ये डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करेगा। तो इसमें दो ऑप्शन है, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट और डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट में होता क्या है
कि ये राउटर कहता है आई एम ओनली गोइंग टू एडवर्टाइज अ डिफॉल्ट रूट इनसाइड इफ आई हैव अ डिफॉल्ट रूट माई सेल्फ। मतलब क्या, अगर मेरे पास डिफॉल्ट रूट खुद है, मेरे पास अगर डिफॉल्ट रूट है तो ही मैं अंदर डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज का मतलब ये, भले मेरे पास डिफॉल्ट रूट नहीं है तो भी मैं अंदर डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करूंगा। क्या समझ में आया इसमें से? हाँ, देखो, तो ये तुम्हारा राउटर है, ठीक है। अब ये इंटरनेट का राउटर है, मतलब ये तुम्हारा राउटर है, तो इसके राउटर पे जो 1 लाख, जो भी 1 लाख 1 करोड़ जो भी नेटवर्क है, इसके राउटर में तो होगा नहीं ना। ये तुम्हारा राउटर है, एक इंटरनेट का लिंक लिया, यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे अगर मान लो, यहाँ पे इसको बता दो कि प्लीज इंजेक्ट डिफॉल्ट रूट, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनल, तो ये क्या करेगा, सबको डिफॉल्ट, ये इसको इस डायरेक्शन में डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट कर देगा, तो इसके पास डिफॉल्ट रूट आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक लैन है जिसको कम्युनिकेशन करना है 172.16 के साथ, इसका पैकेट यहाँ पे आएगा, राउटर चेक करेगा, डू आई नो द डेस्टिनेशन, डू आई नो, ये राउटर को पता होगा, जल्दी बोलो रे, ये राउटर को पता होगा 172.16? नहीं, तो राउटर क्या करेगा? हाँ, इसके पास डिफॉल्ट रूट है या नहीं है? इसने किया ना इंजेक्ट डिफॉल्ट रूट, तुमने इसमें किया डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कर इंजेक्ट, बोल दिया तुमने, तो एएसबीआर अंदर डिफॉल्ट इंजेक्ट करेगा, तो सबके टेबल में डिफॉल्ट आएगा, जो भी इतने राउटर सबके टेबल में डिफॉल्ट आएगा। अब ये लैन वाले पीसी को, ये 172.16 को पिंग करना है, तो यहाँ से पैकेट ये राउटर के पास है, राउटर चेक करेगा डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन 172.16, उसको पता है राउटर को? नहीं पता है, तो राउटर के पास क्या है टेबल के अंदर? डिफॉल्ट रूट है। क्या डिफॉल्ट रूट है? हाँ, मतलब क्या उसका? ASBR को सेंड करवा दीजिए। मुझे नहीं पता, नेबर को सेंड कर। नेबर कौन? इसको सेंड कर, किसके पास आएगा? किसको पता है? किसको कैसे? हमने पहले क्या डिस्कस किया कि ये, इसको कुछ भी नहीं पता, इसने तो डिफॉल्ट रूट तो इंजेक्ट कर दिया अंदर, इसको खुद ही नहीं पता बाहर कैसे जाने का, तो पूरा पैकेट आगे यहाँ पे आगे डिस्कार्ड होगा। मतलब दो केस हो सकते हैं, एक केस हो सकता है कि इसको पता है प्रिसाइजली ये किधर है, मतलब इसके राउटिंग टेबल में है कि 172.16.1.0 2.0 3.0 4.0 100.0, ये सभी नेटवर्क को अगर जाना है तो आईएसपी राउटर को सेंड कर, तो ये उसको पता है, ठीक है। और ये डिफॉल्ट अंदर इंजेक्ट कर देता है, तो इसके टेबल में डिफॉल्ट उठाएगा, इसके टेबल में डिफॉल्ट उठाएगा, इसके टेबल में डिफॉल्ट उठाएगा। यहाँ से कोई लैंड में से ट्रैफिक जनरेट हो रहा है कि ही सेज आई डोंट नो बट लेट मी सेंड इट टू माय नेबर, डिफॉल्ट रूट है, इसके पास है, ये कहेगा आई डोंट नो बट आई हैव अ डिफॉल्ट रूट, इफ आई डोंट नो सेंड इट टू नेबर, इसके पास आएगा। ये कहेगा डू आई नो, आई डोंट नो बट आई हैव अ डिफॉल्ट रूट दैट इफ आई डोंट नो सेंड इट टू द नेबर, इसके पास आएगा। ये कहेगा डू आई नो, यस आई नो, ट्रांसफर करेगा। दो, ये दूसरा केस हुआ। पहला केस क्या है, इसको पता ही नहीं, तो इसने कर दिया अंदर डिफॉल्ट इंजेक्ट, क्योंकि तुमने बोला है इंजेक्ट डिफॉल्ट रूट, तो सबके पास डिफॉल्ट रूट आएगा, सब खुश, इसका ट्रैफिक जनरेट हुआ, डू आई नो द नेटवर्क, नो बट आई हैव अ डिफॉल्ट रूट, डोंट नो सेंड इट टू द नेबर, इसके पास आएगा, ये कहेगा डू आई नो द नेटवर्क, नो बट आई हैव अ डिफॉल्ट रूट विच सेज इफ यू डोंट नो सेंड इट टू नेबर, इसके पास आएगा, ये कहेगा डू आई नो, नो बट आई हैव अ डिफॉल्ट रूट विच सेज डोंट नो सेंड इट टू नेबर, इसके पास आएगा, ये कहेगा डू आई नो, नो, क्या फायदा हुआ इधर तक आके? ड्रॉप ही हुआ ना पैकेट। तो दो कंडीशन हो सकते हैं, एक तो इस, ये डिफॉल्ट अंदर तभी इंजेक्ट करे जब उसको खुद तो पता हो बाहर कैसे जाना है ना, तो इंजेक्ट तो कर बैठेगा ये, सबका ट्रैफिक आके उसके पास आके ड्रॉप डिस्कार्ड हो जाएगा, फायदा क्या फिर, कम्युनिकेशन तो वैसे भी नहीं हो रहा है। तो दो केसेस हो सकते हैं, ही शुड नो अबाउट दीज। तो
ये डिफॉल्ट इंजेक्ट करता है तो कुछ लॉजिक बनता है। दूसरा केस इसको पता ही नहीं ये किधर है और ये कर रहा है डिफॉल्ट इंजेक्ट, क्या फायदा उसका? कुछ नहीं ना। तो मान लो इसको नहीं पता ये नेटवर्क किधर है, तो क्या करोगे तुम लोग ये राउटर पे? इसको नहीं पता ये नेटवर्क किधर है और ये नेटवर्क को जाना कैसे नहीं पता इसको, तो ये राउटर पे क्या करोगे तुम लोग? इस पे भी डिफॉल्ट राउटिंग करोगे, मैन्युअली कितने बताओगे? इस पे भी एक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करो ना, आईपी रूट जो नहीं पता इसको सेंड करा आईएसपी के राउटर को, और फिर कर इंजेक्ट कर दो डिफॉल्ट रूट। तो इसके पास आएगा पता नहीं इसको सेंड कर, ये कहेगा मुझे नहीं पता नहीं इसको सेंड कर, ये कहेगा मुझे पता नहीं इसको सेंड कर, लेकिन इनके पास डिफॉल्ट आया कहां से? मैन्युअली किया क्या तुमने? इसने इंजेक्ट किया। इसके पास जब आएगा पैकेट तब इसके पास डिफॉल्ट रूट तुमने मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया है, क्योंकि उसको प्रिसाइजली नहीं पता था। तो दो केसेस बन सकते हैं, एक तो एएसबीआर को पता है तो उस पर डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ अंदर डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करे ताकि बाहर का अंदर का ट्रैफिक उसके पास है, उसको पता है वो राउटिंग कर दे। दूसरा केस तुम्हारा एएसबीआर को ही पता नहीं वो नेटवर्क किधर है और तुमने इंजेक्ट कर दिया डिफॉल्ट रूट, लॉजिक क्या उसका? तो जब तुम्हारे एएसबीआर को ही नहीं पता तो एएसबीआर पे भी एक डिफॉल्ट रूट तुम्हें कॉन्फ़िगर करना होगा ना मैन्युअली, वहां उसके टेबल में ऑटोमेटिक कहां से आएगा? डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट कर तो आगे जाएगा, इंजेक्ट करते करते खुद पे कैसे आएगा टेबल के अंदर? एएसबीआर पे तुम लोग डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है? ही इज गोइंग टू एडवर्टाइज अ डिफॉल्ट रूट, ही इज गोइंग टू इंजेक्ट अ डिफॉल्ट रूट, तो वो अंदर के टेबल में ऑटोमेटिक दिखना लगेगा। उसके टेबल में कहां से आया? तो उसके टेबल में प्रिसाइज नहीं पता तो तुम लोग मैन्युअली करो ना कॉन्फ़िगर, ताकि उसके पास पैकेट आएगा तो वो ट्रांसफर करेगा बाहर। क्लियर है? तो दो कंडीशन, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट और डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज। तो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कब करोगे और ऑलवेज कब करोगे? डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट मतलब मेरे पास अगर डिफॉल्ट रूट है मुझे खुद बाहर जाने के लिए तो ही अंदर डिफॉल्ट इंजेक्ट कर, नहीं तो उसका फायदा क्या? मुझे ही नहीं पता बाहर कैसे जाना है, मुझे नहीं पता तो मुझे पता होने के दो तरीके, क्या? एक तो मुझे प्रिसाइजली पता होना चाहिए, आइदर मेरे पास डिफॉल्ट रूट होना चाहिए, नहीं पता तो बाहर से निकल। मेरे पास दोनों भी नहीं है, ना मुझे प्रिसाइजली पता है ना मेरे पास डिफॉल्ट रूट नहीं है और मैं अंदर कर रहा हूं डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट, क्या उसका लॉजिक है? तो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट और डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज में डिफरेंस ये है कि इफ आई हैव अ डिफॉल्ट रूट प्लीज इंजेक्ट अ डिफॉल्ट रूट, वो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। और डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज मतलब मेरे पास डिफॉल्ट रूट नहीं भी रहा तो भी अंदर डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट कर, तो मेरे पास डिफॉल्ट रूट नहीं रहा तो भी अंदर डिफॉल्ट इंजेक्ट कर, तो मेरे पास डिफॉल्ट रूट नहीं रहा तो मैं बाहर कैसे कम्युनिकेट करूंगा? तब मेरे पास प्रिसाइज होगा ना। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें एएसबीआर पहले चेक करना है उसको प्रिसाइजली बाहर का नेटवर्क पता है या नहीं पता। अगर उसको प्रिसाइजली बाहर का नेटवर्क पता है तो डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज, उस पर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर करने की क्या जरूरत है तुम्हारे राउटर को? उसको पता है ना बाहर कैसे जाना है, उसको पता है प्रिसाइजली 10 100 200 नेटवर्क उसको पता है, पाथ उसको पता है। तो सिर्फ तुम लोग यही डालो डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज, मेरे पास डिफॉल्ट रूट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे एएसबीआर पे तुम्हारे एएसबीआर को ही पता नहीं है 1/16 किधर है तो फिर उस केस में तुम्हें मैन्युअल डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर करना होगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स आईएसपी ताकि उससे ट्रैफिक बाहर जाए, और फिर तुम लोग कमांड डालो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, तो वो क्या करेगा? डिफॉल्ट रूट है क्या मेरे पास? है, तो अंदर इंजेक्ट करेगा। लेकिन तुम्हें एएसबीआर को प्रिसाइजली भी पता नहीं, एएसबीआर पे डिफॉल्ट राउट भी नहीं है और तुमने क्या डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट या फिर डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज, क्या काम करेगा इन दोनों में से? या कुछ भी काम नहीं करेगा। तुम्हारे राउट आईएसबीआर पे ना डिफॉल्ट रूट है ना प्रिसाइजली उसको पता है, तो ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन यूज करोगे तुम लोग? दोनों का भी यूज हाँ, दोनों काम नहीं है। मतलब अगर तुम लोग ओरिजिनेट कर रहे हो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट तो क्या होगा?
पता वो अंदर डिफॉल्ट इंजेक्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, उसके पास है ही नहीं। क्योंकि उसके पास डिफॉल्ट रूट ही नहीं है, तो अंदर इंजेक्ट ही नहीं कर। तुम लोग बोलोगे चलो ठीक है, तो ये नहीं करेंगे, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल ऑलवेज करेंगे। तो वो क्या करेगा, देखेगा नहीं डिफॉल्ट है या नहीं, तो इंजेक्ट कर देगा, लेकिन उसको कोई फायदा है? नहीं। अंदर डिफॉल्ट आएगा, पैकेट आके एएसबीआर को हिट होगा, एएसबीआर को खुद ही नहीं पता बाहर कैसे जाना है। तो एएसबीआर पे डिफॉल्ट रूट है नहीं, उसको प्रिसाइजली नहीं पता, तो पहले उस पर डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करो। उस पर अगर उसको प्रिसाइजली पता है तो उस पर डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस वक्त डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल ऑलवेज डालो। मुझे नहीं, मुझे पास डिफॉल्ट रूट नहीं है तो भी चलेगा, अंदर इंजर्ट कर, क्योंकि मुझे प्रिसाइज पता है। समझ में आ रहा है? तो ये दो कंसेप्ट, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट और डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज। ठीक है, कमांड ये डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के अंदर डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट मैट्रिक, जो भी अगर तुम्हें अंदर इंजेक्ट, ये मैट्रिक कब काम आएगा? कब तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे मैट्रिक डालना जरूरी है, और कब लगेगा कि मैट्रिक डालने का कोई मतलब नहीं? मतलब तुम्हारा एएसबीआर एक ही है, तो क्या फायदा मैट्रिक इंजेक्ट करोगे या नहीं भी करोगे, उसके थ्रू ही सब कुछ जाने वाला है। तो इफ यू आर हैविंग टू एएसबीआर तब मैट्रिक का लॉजिक बनता है, बट इफ यू आर हैविंग ओनली वन एएसबीआर तो मैट्रिक मत डालो। ठीक है, देखो यहाँ पे उसने क्या डाला, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट, नीचे डिफॉल्ट रूट कॉन्फिगर किया बाहर जाने के लिए। मतलब मेरे पास खुद ही बाहर कैसे जाना पता नहीं, और मैंने डाला डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट, तो अंदर तो डिफॉल्ट इंजेक्ट कर देगा, और मुझे नहीं पता बाहर कैसे जाना है। तो पहले एएसबीआर से बाहर पिंग करना, देख चेक करो एएसबीआर से बाहर पिंग हो रहा है क्या। एएसबीआर से ही बाहर पिंग नहीं हो रहा है, मतलब जो तुम्हें बाहर का नेटवर्क पिंग नहीं हो रहा, तो तुम्हारे पीछे वाले को बाहर का नेटवर्क, हवा में ट्रैफिक जाएगा बाहर, तो तुम्हारे पास ही आएगा ना, और तुम्हें ही नहीं पता बाहर कैसे जाना है। तो फर्स्ट यू फ्रॉम एएसबीआर यू शुड पिंग आउटसाइड। अगर एएसबीआर से बाहर पिंग हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं, तो तुम लोग सिंपल डालो डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल ऑलवेज। लेकिन अगर तुम्हें एएसबीआर से बाहर नहीं पिंग हो रहा है, तो एएसबीआर को पता नहीं होगा बाहर का नेटवर्क, तो एएसबीआर पे पहले डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करो और फिर डालो डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल। ठीक है, पढ़ो इसको। ठीक है, परत वाचला का रे सगळं? ठीक है, बात कौन सी है? ओएसपीएफ, अब ये तुम्हारा स्पेशल एरिया है, मतलब क्या, एक होता है नॉर्मल एरिया, एक होता है बैकबोन एरिया, और दूसरा होता है स्पेशल एरिया। इसमें तुम्हारा स्टब, टोटल स्टब, नॉट सो स्टब, ये टोटल नॉट सो स्टब, ये चारों एरिया है। ठीक है, देखो कुछ पढ़ के समझ में आ रहा है।
आ गया समझ में? चलो बताओ। स्टब एरिया मतलब? हाँ, स्टब एरिया मतलब क्या? नाही नाही, ते तुम्ही तुमच्या भाषेत सांगा. तुम्हें क्या समझ में आया? व्हाट इज स्टब एरिया? एक्सटर्नल अबाउट इंफॉर्मेशन के बगैर बाकी इंफॉर्मेशन होती है अपने एरिया से या लिमिट एरिया जो एक्सटर्नल एरिया में कुछ सर्वर से वो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको नहीं हो. हाँ, क्या? त्याचे आणि त्याच्या नेबरचे इन्फॉर्मेशन असेल, पण त्याला एक्सटर्नल जे आहे ते इन्फॉर्मेशन असेल. त्याच्या आणि त्याच्या नेबरचं म्हणजे कोणाचं? म्हणजे तसं एरिया 0 आहे आणि एबीएम्स आहेत दोन, त्यांची इन्फॉर्मेशन असेल, पण एएसबीआर चे नसेल एक्सटर्नल नेटवर्क इन्फॉर्मेशन. ठीक है, टोटली स्टब. सिस्कोचे डिव्हाइस असेल तर त्याचे सिस्को जनरल बोलो, सिस्को की तरह लिखा है सिस्को, इसलिए वैसा मत बोलो. सिर्फ अपने एरिया की इंफॉर्मेशन फक्त त्याला इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड. हाँ, स्पेसिफिक कनेक्टेड नेटवर्क. मान लो मुझे 4 नेटवर्क कनेक्ट है, तो मुझे 4 नेटवर्क पता होगा. त्याच्या एरियामध्ये एवढे पण अगर एरिया बोलो ना. So when you configure the area stub, your router will be having routes from your area, routes from another areas. But your routers और जो भी एरिया के अंदर जो भी राउटर्स है उनको टाइप 5 नहीं दिखेगा. उनको टाइप 5 नहीं दिखेगा. मतलब एक्सटर्नल राउट्स your routers won't be able to see because you have configured the area stub. If you configure the areas totally stub, both 3 and 5 will be blocked. अंदर 3 भी नहीं आएगा, अंदर 5 भी नहीं आएगा. 3 मतलब कौन? Summary routes. That means another areas. Or type 5 external routes. So when you are configuring area stub, type 5 won't be allowed to come inside. When you configure the areas totally stub, both type 3 and 5 won't be injected. तो कौन डिसाइड करता है क्या इंजेक्ट करना है क्या नहीं करना है? एबीआर. तो एबीआर को सब कुछ पता होता है क्योंकि वो बाउंड्री पे बैठा है. ठीक है, एबीआर के पास टाइप 5 होगा. एएसबीआर के अंदर आया ना, वो एएसबीआर ने अंदर इंजेक्ट किया, तो बाद में हर एक बीच में एबीआर आएगा तो उनके पास होगा ना. तो एबीआर को क्या पता होगा? टाइप 3 टाइप 5. उसका खुद था तो उसका है ही, वो मैटर नहीं करता, वो तो हर एक को पता है. लेकिन मेन दूसरे एरिया का मतलब टाइप 3 और टाइप 5, जब उसको सब कुछ पता है तो तुम्हें डिसाइड करना है कि उससे अंदर क्या इंजेक्ट करना. अगर कुछ नहीं करते हो, नॉर्मल एरिया रखते हो, तो बोथ टाइप 3 एंड टाइप 5 विल कम इनसाइड. बट इफ यू कॉन्फ़िगर द एरिया स्टब, द एबीआर इज नॉट गोइंग टू इंजेक्ट टाइप 5. तो इसके टेबल में एक्सटर्नल राउट्स नहीं दिखेगा. मतलब क्या नहीं दिखेगा? एक्सटर्नल राउट्स नहीं दिखेगा. मतलब क्या नहीं दिखेगा टेबल के अंदर? OE2. So if you configure the areas totally stub, both 3 and 5 will be blocked. तो इसके एरिया में, इसके राउंड टेबल में क्या नहीं दिखेगा? वो आई और OE2 दोनों गायब हो जाएगा, सिर्फ O दिखेगा. ठीक है. If I configure my areas totally stub, the routers which are part of my area won't be having any information about टाइप 3 एंड टाइप 5. दूसरे एरिया का कोई भी नेटवर्क पता नहीं होगा, दूसरे एक्सटर्नल का तो कोई भी पता नहीं होगा. तो उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे करने का? डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करना होगा. 1000 राउटर से अंदर. हाँ, त्याला एएसबीआर आहेच नाही ना, त्याचा फक्त स्वतःच माहिती. देखो एक बात जान लो, स्पेशल एरिया मतलब स्टब और टोटल स्टब. अगर एक एरिया में एक रूल है, एक एरिया को अगर स्टब बनाना है या एक एरिया को टोटल स्टब बनाना है,
तो उसमें ASBR नहीं हो सकता। मतलब एक उसी एरिया को तुम लोग स्टब या टोटल स्टब बना सकते हो जिसमें ASBR नहीं है। जो भी एरिया में ASBR आता है, क्योंकि ASBR भी कोई किसी एरिया में आएगा ना, उसका एक हाफ तो एरिया में रहेगा। तो अगर मान लो एक एरिया में ASBR है, तो वो एरिया को तुम लोग स्टब या टोटल स्टब कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी एरिया में ASBR नहीं है वो तुम्हें, और तुम्हारा एरिया 0 भी स्टब नहीं बन सकता। एरिया 0 कुछ भी नहीं बन सकता। एरिया 0 को छोड़ के बाकी सभी एरियाज आप स्टब टोटल स्टब कॉन्फ़िगर करो, बट मेक श्योर ASBR नहीं है उसके अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी once you configure your area as stub or let's say totally stub, so उस एरिया में कोई तो एक ABR बैठा होगा, he's going to stop injecting 3 and 5। देखो, पहली बात तो ये क्यों करना है स्टब टोटली स्टब? सब कुछ अंदर दिख रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो अगर तुम लोग इंजेक्ट करना बंद कर दोगे तो वो जिस नेटवर्क जो पहले दिख रहे थे वो नेटवर्क अभी नहीं दिख रहे, तो उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो ये फीचर है क्यों? नहीं ऐसा नहीं, देखो ऐसा है, OSPF 65,000 हॉप सपोर्ट करता है। बराबर, मतलब ये स्केलेबल है, इतना स्केलेबल है कि तुम लोग सोच नहीं सकते। 1 लाख राउटर पे भी ये प्रोटोकॉल चल सकता है। तो जब इतने सारे राउटर पे अगर ये प्रोटोकॉल चल रहा है, तो एक एक एरिया में कोई 10-10 नेटवर्क्स नहीं होंगे। एक एक एरिया में 4-4, 5-5 हजार, 10-10 हजार नेटवर्क्स होंगे एक एक एरिया। तो अगर मान लो तुम्हारा एरिया 5 है, उस एरिया 5 में ओ के कितने नेटवर्क्स दिखेंगे? 2-3 हजार। ओ आई के 2-3 हजार। ओ E2 को 10-15 हजार। ठीक है, तो उसका राउंड टेबल का साइज बढ़ेगा। ये HRP इतना स्केलेबल है नहीं। 100 हॉप्स बाय डिफॉल्ट है, मैक्स टू मैक्स 255 हॉप जाएगा। मतलब उसको रन अगर तुम लोग करते भी हो तो कितने राउटर्स पे करोगे? 1,000, 2,000। तो ठीक है, तो राउटर टेबल में अगर राउट्स आता भी है तो कितना होगा? 1,000, 2,000 दिखेगा। लेकिन अगर तुम लोग OSPF रन कर रहे हो, तो अगर टाटा जैसे नेटवर्क में अगर OSPF चल रहा है, तो उसको अगर 100 IP रूट करोगे तो उसमें 15, 20, 30, 40 हजार राउट्स दिखेंगे। वो के लगभग 4-5 हजार। वो आए कि उससे थोड़े ज्यादा, क्योंकि बाकी सब एरिया का आएगा, तो उसमें भी 30-35 हजार। E2 मतलब एक्सटर्नल, वो तो कितने हो सकते हैं उसको काउंट नहीं कर सकते तुम। तो राउंड टेबल का साइज बढ़ेगा। तो ये फीचर दिए, अगर तुम लोग वो एरिया को टोटली स्टब बनाते हो तो वो क्या करेगा? आए और E2 को अंदर आने नहीं देगा। उसके वजह से हुआ क्या? तुम्हारा राउंड टेबल का साइज कम हुआ। ठीक है, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आता है, राउंड टेबल का साइज कम हुआ, दैट्स ओके, लेकिन फिर वो नेटवर्क के साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो ट्रैफिक कैसे जाएगा? तो once you configure the area stub, he is not going to allow type 5 inside, but he is going to inject a default route। खुद ही करेगा, हमें बताने की जरूरत नहीं। he is going to inject a default route। तो अंदर के जितने भी राउटर्स है सब पे डिफॉल्ट ऑटोमेटिक दिखेगा। तो एक डिफॉल्ट रूट काफी है बाकी के नेटवर्क के साथ बात करने के लिए। इफ आई डोंट नो सेंड टू नेबर, नेबर उसके नेबर को, नेबर उसके नेबर को, नेबर उसके नेबर करते करते वो ABR तक आएगा। और ABR को पता होगा, ABR को पता है क्योंकि ABR बाउंड्री पे बैठा है, उसको दूसरे एरिया का सब कुछ पता होगा, एक्सटर्नल भी पता होगा। तो एक बार उसके तक पहुंच जाता है तो वो राउट कर देगा। तो उसके वजह से हुआ क्या? तुम्हारे राउटिंग टेबल में अगर O से 100 नेटवर्क है, O I से 200 है, O E2 से लेट से 200 है, तो सब मिला के नेटवर्क कितने होंगे? 500। अगर तुम लोग एरिया को स्टब बनाते हो तो टाइप 5 को अंदर घुसने नहीं देगा, तो O के 100 दिखेंगे, O I के 200 दिखेंगे, 300, मतलब राउंड टेबल कम हुआ। और एक डिफॉल्ट दिखेगा 301 नंबर पे बाहर जाने के लिए। जब तुम लोग तुम्हारे एरिया को टोटल स्टब कॉन्फ़िगर करोगे तो वो क्या करेगा? टाइप 3 को भी अंदर घुसने देगा। तो तुम्हारा राउंड टेबल की साइज इतना होगा, 100 ही रहेगा, लेकिन एक डिफॉल्ट होगा बाकी के साथ बाहर जाने के लिए। मतलब हमें क्या है? कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसके लिए एक डिफॉल्ट है। तो इसलिए हम लोग स्टब या टोटल स्टब कॉन्फ़िगर करते हैं।
में आ रहा है? ये नॉट सो स्टबी वगैरह ये देखते हैं, टोटली नॉट सो स्टबी। क्या कौन सा ये, ठीक है ना? ये देखो, ये तुम्हारा एबीआर है। इस पे क्या लिखा है उन्होंने? अच्छा, ये एरिया को उन्होंने स्टब किया ना, एरिया 50 को स्टब किया। तो ये जो भी नेटवर्क है इस तरफ से जो भी आ रहे हैं वो आगे, देखो यहाँ पे लिखा है ना डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट मतलब पहले ये सब कुछ जा रहा था, राइट? पहले ये जो भी तुम्हारा समरी है उसको समरी राउट करके अंदर इंजेक्ट हो रहा था। अभी अगर तुमने ये एरिया को अगर स्टब बना दिया है तो ये जो बाहर का जो नेटवर्क है टाइप 5 वाला, वो ये एएसबीआर है ना, ये बाहर तुम्हारा अंदर नहीं है। ओनली अ डिफॉल्ट रूट विल बी इंजेक्टेड। तो ये प्रैक्टिकल करके हम लोग देख लेंगे इसको। पढ़ो फटाफट। ऐसा एरिया हो सकता है जिसमें एबीआर ना हो, ऐसा एरिया हो सकता है एबीआर ना हो, कहीं ना कहीं तो एबीआर होगा। ठीक है, तो ऐसा एरिया लाइफ में कभी हो नहीं सकता कि जिसको एबीआर नहीं। एक एरिया स्टब कब बनेगा? उस एरिया के हर एक राउटर को स्टब कॉन्फ़िगर करना होगा, इसलिए हम वो था ना, पैरामीटर शुड बी सेम, उसमें एक था स्टब फ्लैग। तो अगर एरिया में 10 राउटर है तो एक मतलब एक एरिया स्टब, एरिया मतलब क्या है? एक एरिया स्टब तभी बनेगा जब एरिया के अंदर जितने भी राउटर है हब पे जाके तुम लोग मैनुअली एरिया वन स्टब, एरिया वन स्टब, एरिया वन स्टब, एरिया वन स्टब कॉन्फ़िगर करो। अगर तुमने 8th राउटर पे स्टब कॉन्फ़िगर किया, उसका नेबर मान लो 9th है, उस पे नहीं किया, तो दोनों में नेबरशिप डाउन हो। तो अगर एक राउटर स्टब कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो दूसरे राउटर पे भी स्टब करना होगा, दूसरा राउटर स्टब कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो तीसरा भी कॉन्फ़िगर करना होगा। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है, उस एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स आ रहे हैं हर एक राउटर पे तुमने वो स्टब वाला कमांड देना होगा। अगर एक भी राउटर के पास स्टब वाला कमांड नहीं है और उसके नेबर के पास स्टब वाला कमांड है तो दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म नहीं होगा, तो आगे कुछ एक्शन नहीं होगा। स्टब टोटल स्टब कब बन सकता है? देयर शुड बी नो एएसपीआर, और वो एरिया 0 नहीं होना चाहिए। और क्या? उस लिंक के थ्रू वर्चुअल लिंक नहीं जाना चाहिए, उस एरिया के थ्रू, उस एरिया के थ्रू अगर वर्चुअल लिंक जा रहा है तो वो भी एक एरिया तुम लोग स्पेशल एरिया करके कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो ये 3 कंडीशन है। द एरिया शुड नॉट हैव एएसपीआर, द एरिया शुड नॉट बी एरिया 0, एंड वाया दैट एरिया नो वर्चुअल लिंक शुड पास। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं और ऐसा कुछ एरिया तुम्हें मिलता है जो इसमें ना एएसपीआर है, ना वो एरिया 0 है, और ना उसके थ्रू वर्चुअल लिंक जा रहा है, तो उसको तुम लोग स्टब या टोटल स्टब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट रूट इज एडवर्टाइज। ठीक है, external LSA will be stopped, default route will be advertised, that is stub. Configuration ऐसे, area to stub, कॉस्ट वगैरह मतलब अगर डिफॉल्ट अंदर इंजेक्ट करना है और मेट्रिक भी देना है तो दे दो ना, तो ये कमांड सेकेंडरी है, ये ऑप्शनल है। ये कमांड कब काम आएगा? जब दो एपीआर है, तो डिफॉल्ट रूट ये भी इंजेक्ट करेगा, ये भी इंजेक्ट करेगा, तो बेस्ट पाथ सिलेक्शन में तुम लोग कॉस्ट डिफाइन करो। लेकिन एक ही एपीआर बीच में बैठा है तो डिफॉल्ट कॉस्ट देने का कोई मतलब नहीं। तो ये कमांड ऑप्शनल है, ये तभी आएगा व्हेन यू आर हैविंग टू एपीआर्स एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट द पाथ सिलेक्शन। लेकिन एक ही एबीआर, तो ये कमांड का मतलब सिर्फ एक ही दोगे, एरिया टू स्टब, दैट्स इट। मुझे ये एरिया स्टब चाहिए तो ये एरिया टू स्टब, तो ये एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स है सभी पे ये कमांड चलेगा, एरिया टू स्टब, 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 तब वो एरिया स्टब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। Every router which are part of that area should be configured with stub command, only then the complete area will become stub, otherwise no। ठीक है, इनको अगर एरिया किधर, ये एरिया टू स्टब करना है
तो एबीआर पे भी वो कमांड चलेगा, क्योंकि एबीआर का आधा पार्ट भी तो एरिया 2 में है, तो एबीआर पे भी वो कमांड चलेगा एरिया 2 स्टब। और अंदर जितने भी राउटर्स, अब यहाँ पे एक ही राउटर दिखा है, लेकिन अंदर अगर 50 राउटर्स है तो हर एक राउटर का एक्सेस लेके तुम्हें ये कमांड देना होगा एरिया 2 स्टब। फिर क्या होगा, ये स्टब की है तो इधर से जो भी राउट आ रहा है वो इसके अंदर टाइप 5 नहीं आया, ठीक है, क्योंकि एरिया 2 को स्टब किया तो दैट एरिया विल नॉट और दैट एबीआर विल नॉट अलाउ टाइप 5 टू कम इनसाइड जिस एरिया को तुमने स्टब बनाया उससे, ठीक है। टोटल स्टब मतलब क्या, स्टब मतलब वो 5 को नहीं कर रहा था, अभी 3 को भी अंदर आने नहीं दे, ठीक है। बाकी कंसेप्ट सही, और डिफॉल्ट रूट विल बी इंजेक्ट। देखो यहाँ पे अंदर के जितने भी राउटर्स है उस पर सेम रहेगा कमांड, उस पर चेंज नहीं होगा। एबीआर का कमांड चेंज हो, एरिया 2 स्टब नो समर, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब टाइप 3 समरी, मतलब टाइप 3 ना। सो एरिया 2 स्टब मतलब 5 इंजेक्ट मत कर, उसके आगे लिख रहे हो तुम लोग नो समरी, मतलब समरी रूट भी इंजेक्ट मत कर, मतलब 3 और 5 दोनों ब्लॉक, ठीक है। अगेन कॉस्ट ये डिपेंड करता है, अगर तुम्हारे मल्टीपल लिंक्स है तो, अदरवाइज नहीं। तो अंदर के जितने भी राउटर्स है उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा एरिया 2 स्टब, लेकिन एबीआर को बोलना होगा ना कि 3 के साथ 5 के साथ 3 भी ब्लॉक कर, तो एबीआर का कमांड चेंज होगा, एरिया 2 स्टब नो समरी लगेगा। स्टब किया तो 5 वाज नॉट इंजेक्टिंग, नो समरी मतलब ही विल आल्सो स्टॉप इंजेक्टिंग 3, बट ही विल इंजेक्ट अ डिफॉल्ट, क्योंकि वो कंपलसरी है। अगर वो डिफॉल्ट इंजेक्ट नहीं करता, मतलब स्पेशल एरिया का सिर्फ इतना ही कंसेप्ट होता कि अंदर वो एरिया वो टाइप 3 और टाइप 5 ब्लॉक करना है, तो फिर अंदर पे अगर डिफॉल्ट रूट भी नहीं रहा तो कम्युनिकेशन बंद हुआ ना, उल्टा, वो तो नेगेटिव इंपैक्ट हुआ फिर उसको। सो वी वांट दोस टू कम्युनिकेट विद आउटसाइड वर्ल्ड, बट वी डोंट वांट देयर राउटिंग टेबल साइज टू इंक्रीज। तब ये कॉन्फ़िगर करो तो डिफॉल्ट भी अंदर चाहिए, जो कि वो ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है, तो किस ये एरिया 1 को अगर बनाना है तो एरिया 1 के अंदर R4 R2 विल बी और एबीआर और R3 आ रहा है, तो R3 पे स्टब वाला कमांड चलेगा, और R4 R2 दोज आर एबीआर्स, तो इसके ऊपर नो समरी ऐड होगा, तो एरिया 1 स्टब नो समरी, एरिया 1 स्टब नो समरी, और 2 राउटर है तो कॉस्ट देना होगा। इफ यू वांट टू मैनिपुलेट द पाथ सिलेक्शन प्रोसेस तो ये सेकंड वाला कमांड तुम लोग दे सकते, दैट इज ऑप्शनल, ठीक है। तो अगर तुमने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, सब कुछ एज इट इज है, तो ये पूरा ऐसा दिखेगा, उसमें ओ भी दिख रहा है, ओ आई भी दिख रहा है, ओ ए टू भी दिख रहा है। नॉर्मल एरिया, कोई भी स्पेशल एरिया कॉन्फ़िगर नहीं किया है। Your area will be having all the information about internal routes, type 3 routes, type 5 routes. Now if you configure stub के बाद ये दिखना बंद होगा, ठीक है ना, टाइप 5 दिखना बंद होगा, तो ओ आई दिखेगा, ओ दिखेगा, ओ आई दिखेगा, और एक आएगा डिफॉल्ट रूट बाहर जाने के लिए। ये हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा R3 पे। So this reduces your size of routing table. टोटली में ओ आई भी नहीं दिखेगा। When you configure, अच्छा ये स्टब ही है लेकिन समराइजेशन की है। अगर तुम्हें ये R3 है ना, समराइज कर रहे हो, किस पे समराइज कर रहे हो, एबीआर। तो एबीआर पे जब समराइज करोगे तो वो क्या समरी करेगा, एबीआर पे जब समराइजेशन कॉन्फ़िगर करोगे तो वो क्या समराइज करेगा, टाइप 3। ईएसबीआर पे जब समराइज करते हो तो टाइप 5 समराइज करते हो, एबीआर पे जब समराइज करते हो तो टाइप 3 करते हो। तो तुमने
एरिया को स्टब बना दिया, एक बार तुमने एरिया को स्टब बना दिया उसके बाद क्या होगा, टाइप 5 अंदर नहीं आएगा, टाइप 5 अंदर नहीं आएगा, लेकिन टाइप 3 पूरा का पूरा आएगा, टाइप 3 पूरा का पूरा आएगा, वो भी तुम्हारे समराइज फॉर्म में चाहिए। तो तुम लोग एबीआर पे समरी वाला कमांड डाल दो, तो वो ओ आई के जो 10-15 दिख रहे थे वो समराइज वाला वो एक ही अंदर आएगा। फिर समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? उसमें बहुत सारे नेटवर्क देखो। उसका मेजर नेटवर्क है। ये अभी ओ आई है, ठीक है, कितने हैं 131 डॉट, ठीक है, 22 11 11 11, या फिर मान लो इसको तुमने स्टब कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, लेट से ये HRP, ये तुम्हारा ESBR बने, यहाँ पे तुम्हारे 100 नेटवर्क 172.16 की, ठीक है, 1 डॉट से लेके 100 तक। ये अगर इसके राउटर पे देखोगे तो यहाँ पे भी जो नेटवर्क्स है लेट से 192.168.1 से लेके लेट से 63.0 तक, ठीक है, और इसके अपने नेटवर्क है लेट से 10, लेट से 10.0, 11 डॉट, 12 डॉट, 13 डॉट, 14 डॉट, 15 डॉट, 16। तो इसका टेबल अगर मैं देखना चाहूँ तो इसका टेबल मुझे कैसा दिखेगा, कनेक्टेड छोड़ दो, वो दिखेंगे कितने 10, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0.0.0, 14.0.0.0.0, ये कितने दिखेंगे 10, ओ से, ठीक है, ओ आई से कितने दिखेंगे 192.168.1.0, 2.0, 3.0, 63.0, ठीक है, और ये वाला जो है OE2, ये कितने हैं 64 नेटवर्क, 63 नेटवर्क्स में, ये कितने 10, ये 63, और ये कितने, ये कौन से दिखेंगे 172.16.1.0, 2.0, ऐसे करते करते 100.0, ये 100 नेटवर्क। So this router is having near about 173 networks. अब तुमने ये एरिया को किया स्टॉप, क्या हुआ, ये जो भी 100 है ये अभी अंदर नहीं जाएगा, एबीआर इसको अंदर नहीं जाएंगे, तो अभी क्या दिखेगा, ये इतना दिखेगा, और एक डिफॉल्ट दिखेगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये भी प्रिसाइजली नहीं दिखना चाहिए, ये भी समराइज फॉर्म में दिखे, तो हमने एबीआर पे समराइजेशन और एएसबीआर पे समराइजेशन वाला कमांड हमें पता है, तो हम लोग चेक करेंगे कि चलो ठीक है वो आई में कौन कौन है, वो आई में है 192.168.1.0 से लेकर 63.0, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अंदर जो इंजर्ट करूंगा वो इंजर्ट करते वक्त 192.168.0.0 स्लैश क्या यूज करूंगा 18, 20 मतलब 60, ये 16, 19 मतलब ये 32,
और 18 मतलब ये 64। तो ये पूरा रेंज है 0.0 से लेके 63.255, सिर्फ यही अंदर इंजेक्ट हो। मतलब ओ आई तो मुझे दिखेगा, लेकिन समरी राउंड दिखेगा। तो इससे मेरा राउंड टेबल का साइज फर्दर कम हुआ, कितना, ये 10, ये 63 का एक 11, और इसके लिए डिफॉल्ट रूट 12। ठीक है, तो इसका मतलब स्टफ विद समराइजेशन। अब मैं चाहता हूं ये भी मुझे नहीं दिखना चाहिए, तो टोटल स्टफ, टोटल स्टफ में ये भी नहीं जाएगा। तो टोटल स्टफ में क्या दिखेगा, ये 10 और एक डिफॉल्ट रूट 11। ठीक है, तो ये पहले के केस में क्या है, सिर्फ स्टफ किया कॉन्फ़िगर, स्टफ कॉन्फ़िगर किया तो ये तो इंडिविजुअल दिखेगा, लेकिन एक डिफॉल्ट अंदर इंजेक्ट हो। तो फिर स्टबी किया है लेकिन समराइजेशन किया, तो ये आय का समय रूप तुमने फाइंड आउट किया होगा, और वो समय रूप तुम लोग अंदर इंजेक्ट करें, तो उसका भी आय भी कम दिखना लगे। बट फर्दर इफ यू डोंट इवन वांट ओ आय, दैट मीन्स अनदर एरिया राउट्स, देन यू नीड टू कॉन्फ़िगर टोटल स्टफ। टोटल स्टफ में क्या हुआ, सिर्फ ओ मतलब अपना एरिया का सब कुछ दिख रहा है, बाहर का कुछ भी नहीं, ना ओ आए ना ओ ई टू, लेकिन एक डिफॉल्ट होना चाहिए बाहर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, जो कि ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाए। ठीक है, अब तुम्हारा नॉट सो स्टबी और टोटली नॉट सो स्टबी। ये कब करते हैं हम लोग, स्पेशल एरिया अगर कॉन्फ़िगर करना है तो क्या कंडीशन है, एक तो एरिया 0 नहीं होना चाहिए, वर्चुअल लिंक नहीं पास होना चाहिए, और ASBR of course उसमें जो पालेगा झोपतेच कशाला मग, हाँ कब करते हैं, ASBR नहीं इस पे ESBR नहीं, लेकिन ऐसा एरिया तुम्हें स्टफ करना है जिसमें ESBR हो, या ऐसा एरिया तुम्हें टोटली स्टफ करना है जिसपे ESBR हो, तो उस पे ये नॉट सो स्टबी, टोटली नॉट सो स्टबी, मतलब स्टबी का भाई नॉट सो स्टबी, और टोटली स्टफ का नॉट सो टोटली स्टबी। हाँ, स्टफ टोटल स्टफ कहाँ पे नहीं कर सकते, जिस एरिया में ESBR आ रहा है उस एरिया। लेकिन मान लो वो एरिया तुम्हें करना है स्टफ या टोटल स्टफ, लेकिन उसमें ESBR है, तो स्टफ या टोटल स्टफ नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते, तो स्टफ के बड़े भाई को कॉन्फ़िगर करना होगा नॉट सो स्टफ। और अगर वो एरिया टोटली स्टफ है और उसमें ESBR है और वो टोटल स्टफ का फीचर तुम्हें चाहिए उस पे, तो टोटल स्टफ का टोटली नॉट सो ये एडवांस वर्जन को, मतलब टोटली नॉट सो स्टबी को कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, ठीक है, ये कल देखेंगे। कल तुम्हारा OSPF खत्म होगा। कल कौन सा डे, थर्सडे, फिर फ्राइडे तुम्हारा प्रैक्टिकल। एक ही प्रैक्टिकल में जितने भी फीचर्स है, छोटा छोटा प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इसका समराइजेशन का ये ऐसा एक ही प्रैक्टिकल लेने का, उसी के अंदर सभी फीचर्स डाल देंगे। इधर वीडियो